First, it is understood from the revealed scriptures that the duration of life there is 10,000 years by our calculation. हम्म 6 months on earth is equal to 1 day on the heavenly planets. हम्म Of enjoyment are also similarly enhanced, and the हम्म beauty of the inhabitants is legendary. Common हम्म men on the earth are very much fond of reaching the heavenly planets because they have heard the comfort of life are far greater than that on earth. They are हम्म now trying to reach the moon by spacecraft. हम्म Considering all this, the heavenly planets are more celebrated than the Earth. But हम्म the celebrity of Earth has defeated that of the heavenly planets because of Dwarka, where Lord Sri Krishna reigned as king. Three हम्म places, namely Vrindavan, Mathura, and Dwarka, are more important than the famous planets within the universe. हम्म These places are perpetually sanctified because whenever the Lord descends on earth, he displays his transcendental activities, particularly in these three places. They are हम्म perpetually the holy lands of the Lord, and the हम्म inhabitants still take advantage of the holy places, हम्म even though the Lord is now out of their sight. The हम्म Lord is the soul of all living beings, and He desires always to have all the living beings in their swarup, in their constitutional position, to हम्म participate in transcendental life in His association. His हम्म attractive features and sweet smiles go deep into the heart of everyone, हम्म and once it is so done, the living being is admitted into the kingdom of God, from हम्म which no one returns. This हम्म is confirmed in the Bhagavad Gita. हम्म The heavenly planets may be very famous for offering better facilities of material enjoyment, but as we learned from Bhagavad Gita 9, 20, and 21, one has to come back again to the earth planet as soon as the acquired virtue is finished. हम्म Dwarka is certainly more important than the heavenly planets because whosoever has been favored with the smiling glance of the Lord shall never come back again to this rotten earth, which हम्म is certified by the Lord Himself as a place of misery. हम्म Not only this earth, but also all the planets of the universes are places of misery, because in none of the planets within the universe is there eternal life, eternal bliss, and eternal knowledge. हम्म Any person engaged in the devotional service of the Lord is recommended to live in one of the above mentioned three places, namely Dwarka, Mathura, or Vrindavan. हम्म Because devotional service in these three places is magnified, those who go there to follow the principles in terms of instructions imparted in the revealed scriptures surely achieve the same result as obtained during the presence of the Lord Sri Krishna. His हम्म abode and he himself are identical, and a हम्म pure devotee under the guidance of another experienced devotee can obtain all the results even at present. हम्म इसमें एक चीज जो ना मेरे को काफी टाइम लग गया था ये अप्रिशिएट करने में। हम्म एक्चुअली जितने भी ये स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक, हम्म एक्चुअली में वहां पे भी सेम मिजरी है। ठीक बिल्कुल है, वहां पे ज्यादा मटेरियल एंजॉयमेंट हो सकता है, लेकिन जी वहां पे भी बर्थ डेथ है। जैसे हम्म ब्रह्मा की भी एक एज है। हम्म अच्छा, अगर आप देखें तो अगर जैसे ही आपकी एज है तो मतलब डेथ है, डेथ है हम्म तो फिर मतलब ओल्ड एज है, ओल्ड एज है तो फिर तो वो हम्म फिर बर्थ हम्म डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज तो फिर आपका आ ही गया। अच्छा, हम्म तो इसलिए सारे स्वर्ग लोक ये ब्रह्म लोक इन सब में सिर्फ कंफर्ट थोड़े ज्यादा है, यहाँ कंफर्ट कम है। हम्म और दूसरी चीज जो मुझे इसमें बड़ी वो लगी थी कि आप एक बार अगर भगवान जो चाहते हैं, जो बड़ा ये अच्छा कि भगवान चाहते हैं कि हम उनकी सर्विस में आके हम्म इटर्नल लाइफ ले लें, रादर हम्म देन ये यहाँ पे जो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकों में हम्म उलझते रहें या डिफरेंट स्पीशीज में उलझते रहें। भाई वो तो परम पिता है, वो तो ये चाहेंगे ही हमारा भला। तो यस। ये चीज है वरुण यहाँ पे एक चीज हमें जानते हो क्या समझ में आ रही है हम्म। भगवान ये सब कहते हैं ना कि तुम मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा तो देखो एक्चुअली हम लोगों की समझ क्या होती है जो हम लोगों ने अभी तक देखा है वही हमारी समझ होती है तो हम्म। वरुण क्या होता है हम लोगों ने हमेशा ये देखा है वरुण कि जो व्यक्ति हमें जितना ज्यादा यूज करना चाहता है वो उतने प्यार से हमें बुलाता है फिर हमको एक्सप्लॉइट करता है हमको यूज करता है और अपना मतलब सीधा करता है तो वरुण जानते हो जो भगवान इतनी उदारता की बात कह रहे हैं वो हम लोग की समझ से बाहर इसलिए है क्योंकि हम लोग ने ऐसे लोगों को देखा ही नहीं यस। है ना यस। जनरली यस। हम लोगों ने एक माता पिता के अलावा वरुण
ऐसे लोगों को कहाँ तुमने देखा वरुण को कोई तुमको हम्म। बुलाए और तुमको बोले कि हम तुमको बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं? एक्चुअली मौसी आपको मैं सही बताऊं, अब मैंने फर्मली कंक्लूड कर लिया है कि एक्सेप्ट फॉर डिवोटीज, हम्म। डिवोटीज को आप अलग रख दीजिए। हम्म। अदरवाइज यहाँ जो नॉन, बाकी सब नॉन डिवोटीज हैं, और हम्म। उनका सिर्फ एक ही काम है आपको लेके एक्सप्लॉइट करना, और हाँ, उनके पास आपका कोई यूज नहीं है। वो वो और कुछ आपसे करते मिलते भी ही हैं, हम्म। और उनके पास वो एक्चुअली अपनी बॉडी को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिससे एग्जैक्टली। मिलते हैं उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हाँ। उससे, और इसीलिए उनसे ऑलमोस्ट एक सुपरफिशियल लेवल पे, और उनसे अलग रहने को ही भगवान ने कहा है कि उनसे बस ज्यादा ये। ना उनसे उलझो। मतलब मैं, और लेकिन ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस हम्म। तभी तो मैंने कहा ना, हम्म। मौसी, जो भगवत गीता में जिस तरह की भगवान ने उदारता, जितना प्यार, और जिस हम्म। तरह से गारंटी, उत्साह किया है, उसमें हम्म। कोई नहीं कर सकता कि कोई कुछ उन्होंने नहीं इस तरह करता। की बात की, भाई तुम मेरे पास आ जाओगे, हम्म। मैं तुम्हारे सारे पाप भर लूंगा। इस तरह की हम्म। बात कोई, किसी ने, कोई और डेमिगॉड इस तरह की बात नहीं कह सकता नहीं कर कि मैं सकता। तुम्हारे सारे पाप भर लूंगा। फिर ये तो, मतलब इस तरह की चीज एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ही कह सकता है। और हाँ। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। 28। जी। हाँ। आप पढ़िए। मैं पढ़ूं? आप पढ़िए आप जी। मसी। नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः समर्चितो हस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति याः सख्य धरामृतम मुह मुहुर्व्रजश्रिय सम्मो मुहर्दाशयाः। अच्छा, ट्रांसलेशन। ओ फ्रेंड्स, just like of his wives whose hands he has accepted, how they must have undergone vows, baths, fire, sacrifice, and perfect worship of the Lord of the universe to constantly relish now the nectar from his lips by kissing. The damsels of Vrajbhumi would often faint just by expecting such favors. Purport. Religious rites prescribed in the scriptures are meant to purify the mundane qualities of the conditioned soul to enable them to be gradually promoted to the state of rendering transcendental service unto the Supreme Lord. Attainment of this stage of pure spiritual life is the highest perfection, and this stage is called Swarup, or the factual identity of the living beings. Liberation means renovation of this stage of Swarup. In that perfect stage of Swarup, the living being is established in 5 phases of loving service, one of which is the stage of uh, Madhuri Ras, or the humor of conjugal love. Acha. The Lord is always perfect in himself, and thus he had no hankering for himself. He, however, becomes a master, a friend, a son, or a husband to fulfill the intense love of the devotee concerned. Herein, two classes of devotees of the Lord are mentioned in the stage of the conjugal love. One is uh, Swakya, and the other is Parkriya. Both of them are in conjugal love with the personality of Godhead Krishna. The queens at Dwarka were Swakiya, acha, or duly married wives. But the damsels of Vraj were young friends of the Lord while he was unmarried. The Lord stayed at Vrindavan till the age of 16, and his friendly relations with the neighboring girls were in terms of parkiya. These girls, as well as the queens, underwent severe penances by taking vows, bathing, and offering sacrifice in fire as prescribed in the scriptures. The rites, as they are not an end in themselves, nor an fruitive action, culture of knowledge, or perfection in mystic powers ends in themselves. They are all means to attain the highest
stage of Swarup to render constitutional transcendental service to the Lord. Each and every living being has his individual position in one of the above mentioned 5 different kinds of reciprocating means with the Lord, and in one's pure spiritual form of Swarup, the relation becomes manifest without mundane affinity. The kissing of the Lord, either by his wives or his young girlfriends who aspire to have the Lord as their fiancé, is not of any mundane perverted quality. Had such things been mundane, a liberated soul like Sukdev would not have taken the trouble to relish them, nor would Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu have been inclined to participate in those subjects after renouncing worldly life. The stage is earned after many lives of penance. एक लाइन तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि द लॉर्ड इज ऑलवेज परफेक्ट इन हिमसेल्फ एंड ही हैज नो हैंकरिंग फॉर हिमसेल्फ। ये तो वैसे सच्चिदानंद विग्रह हैं, मतलब वो फुल्ली अपने में ही इज फुल ऑफ इटर्नल ब्लिस, इटर्नल नॉलेज एंड इटर्नल नॉलेज ब्लिस, है ना। अच्छा, ही हाउएवर बिकम्स अ मास्टर, अ फ्रेंड, अ सन और अ हस्बैंड टू फुलफिल द इंटेंस लव ऑफ द डिवोटीज कंसर्न। एक्चुअली में ये रिलेशनशिप में भगवान जाते हैं अपने डिवोटीज को खुश करने के लिए, बिल्कुल। मदर यशोदा को खुश करने के लिए, गोपियों को खुश करने के लिए, अर्जुन को हेल्प करने के लिए। एक्चुअली तो वो डिवोटीज को हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, ये उनको बिल्कुल। सेटिस्फाई करने के लिए, नहीं तो खुद तो वो ही इज फुल्ली कंप्लीट एंड ही इज फुल ऑफ सच्चिदानंद विग्रह। और ये वाली बात भी बड़ी मुझे अच्छी लगी। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि भगवान के अंदर कोई मटेरियल वो बिल्कुल नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग तो मटेरियल से भरे हुए हैं, मटेरियल एफिनिटी से। अच्छा, भगवान क्योंकि उन्होंने अपने इल्यूशनरी एनर्जी से, वो लगते हैं हमको दो हाथ दो पैर, तो ऐसे पर्सन की तरह, मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह लगते हैं, और वो लीलाएं भी ह्यूमन बीइंग की तरह कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली में सारी बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल हैं। उसमें बिल्कुल कोई मटेरियल वो नहीं है। जैसे कि अभी लड़का लड़की के बीच में कोई चीज होती है वो मटेरियल है, दैट ऑल दैट लव इज नॉट रियली लव, इट्स रियली लस्ट। वेयर एज जो भगवान का गोपियों के साथ है रिलेशन, या भगवान के अपनी वाइफ्स के साथ जो रिलेशन है, दैट इज टोटली ट्रांसेंडेंटल। उसका हमको धीरे धीरे अनुभूति होती है जब हम भगवान के साथ वो ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। बिल्कुल। और वरुण एक चीज और भी है, जैसे बहुत से लोग जब गीता के बारे में, हमने एक दो लोगों को ये भी कहते हुए सुना है वरुण, कि जैसे वरुण हम लोग के इंडिया में है ना कि एक वाइफ का एक ही हस्बैंड होता है, या एक हस्बैंड की एक ही वाइफ होती है। तो जब वो इन सब चीजों को पढ़ते हैं वरुण, तो इसको बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। उनको लगता है बहुत कि उनको तो लगता है वरुण ये तो एक तरह की कैरेक्टरलेसनेस है। आर यू गेटिंग? बहुत लेकिन वरुण बिल्कुल एक्चुअली है कि ये जो बात कही जा रही है ये बहुत हायर प्लेन से कही जा रही है, और हम उसको लोअर प्लेन पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ वरुण। बिल्कुल मौसी, एक्चुअली बिल्कुल जो आपने करेक्ट, बात कही, एब्सोल्युटली करेक्ट। यही एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में बार बार कही है। जी आप लोग तुरंत जंप करके 10th कैंटो में वहां पे भी रास लीला पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जी 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 जी। जबकि श्रीला प्रभुपाद ने तभी कहा है कि आपको कैंटो 1 से पूरा हम्म, 9, पहले 9 कैंटो पढ़िए, जी समझिए कि भगवान हैं क्या। उससे हाँ आपका प्यूरिफिकेशन होगा, तब आप 10th कैंटो पढ़िए, तब आप समझ पाएंगे कि भगवान हैं क्या। नंबर अदरवाइज आप नहीं एक समझ चीज और पाएंगे। मैं कहना हम्म। चाहता हूँ। यू सी, जबकि आप देखो, मुझे नहीं याद जाता कि भगवत गीता में कहीं पर भी ये मेंशन है कि उनकी 16,000 वाइफ्स हैं। हम्म। यू सी, अच्छा, मतलब उसमें है ही नहीं है, नंबर वन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया कि लोगों ने ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी है। तो हम्म। इन ऑर्डर टू कंडेम गीता इटसेल्फ, नंबर वन। हम्म। अच्छा, और जो वरुण और जो तुमने कहा ना, तुम्हारा रियलाइजेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, आप देखो ये, as soon as you start going into this text and purport, आपको पहले तो ये चीज आप देखो कि ये बातचीत कहाँ हो रही है। ये जब वो डिपार्ट कर रहे हैं फ्रॉम हस्तिनापुर टू द्वारका,
अच्छा, अब जो हम्म डिपार्ट कर रहे हैं, दोस पैलेस लेडीज एंड सिटी लेडीज ऑन द हम्म टॉप ऑफ देयर रूफ्स, हम्म they are having only one glimpse, हम्म not his wives, not gopis, हम्म who are seeing them for a very long periods. हम्म एक ही ग्लिम्स में दे वर, क्या नाम है, मतलब दे रीच दैट हाईएस्ट प्लेन एंड दे वर डिस्कसिंग द परम गुह्यतम ज्ञान, क्या नाम है कि ये है, ये जो है कि जो डैमसेल्स ऑफ द्वारका, और क्या नाम, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द डैमसेल्स ऑफ व्रज व्रजभूमि विल ऑफन फेंट just by expectation of such favors. What favors? That he will be kissing us, he will be kissing me. A 13-14 year girl just by the expectation was fainting. उस जमाने में, जबकि आज भी कुंवारे लड़के लड़कियों का इस तरह का बिहेवियर इज सो मच लुक डाउन अपॉन, yet you see, क्या नाम है, इट इज बिकॉज ये चीज ये हर एक के बस का नहीं है। और जो दो चीजें प्रभुपाद ने ये बताई है ना, कि सुखदेव गोस्वामी जैसा एब्सोल्युटली रिनाउंस्ड ऑर्डर में जो आदमी था, क्योंकि ये लोग स्वरूप सिद्ध थे। और अगर आप इसकी और ज्यादा हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो भगवान कभी भी जब इस धरती पर आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, वो आते हैं अपने एटर्नल एसोसिएट्स के साथ। और ये जो आत्माएं हैं ना, जो गोपियों की फॉर्म में या उनकी पत्नियों की फॉर्म में, वो उनकी एटर्नल एसोसिएट्स हैं। एंड यू सी, सोल का कोई सेक्स नहीं होता, लेट मी टेल यू, वो आएगा, द सोल हैज नो सेक्स, बिल्कुल। नो। तो द लॉर्ड इज, क्या नाम है, ये बहुत, मतलब जैसा हमने थोड़ा बहुत हमें नॉलेज है उसके हिसाब से, ये बहुत पहुंचे हुए, जो बहुत ही ऋषि जो थे, ऋषि मुनि, वो लोग जी। हैं ये गोपियां, जिनको ये शरीर दिया है भगवान राम के भगवान टाइम ने, में टू, क्या नाम है, फील दिस काइंड ऑफ लविंग रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। जी माधुर्य रस जो है, माधुर्य रस जिसमें कि ये गोपियां हैं, जी that is the highest form of relationship oriented love, which is, क्या नाम है, absolutely impossible to attain by any, क्या नाम है, human being, unless क्या नाम है, उस पे भगवान की बहुत महती कृपा ना हो। बिल्कुल। एक्चुअली आपका समझे ये क्या? आपने बात ना बहुत ही ज्यादा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कही आपने, कि एक्चुअली क्योंकि ये देखिए ना, ये भगवान की इतनी वाइफ्स थी, और ये जो 10th कैंटो में जो रास लीला है, भाई 10th कैंटो तक करोड़ों, और पहुंचना वो बहुत गोपियां करोड़ों की संख्या में करोड़ों बताया थी। गया है। हाँ, लेकिन अब वो जो है मतलब मंडेन ये माइंड। एक सेकंड कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पास टाइम था। ये ऐसे नहीं कि हर किसी के साथ डिस्कस कर लिया जाए। ये बाबा की बड़ी अच्छी बात है। ये एक्चुअली लोगों ने इसको यूज किया है भगवत गीता को कंडेम करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही एक्चुअली में। इसीलिए एक्चुअली तो श्रीला प्रभुपाद वगैरह तो बिल्कुल लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वो नहीं डिस्कस करते थे। नो, ओनली अपने जो सबसे क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज थे उन्हीं के साथ सिर्फ ये डिस्कस करते थे, गोपियों का और भगवान कृष्ण का प्रेम। हर किसी के साथ नहीं डिस्कस करते थे ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये यू हैव अब टू रियली एक प्यूरिफाई एक आपको ये बताता हूँ, जो शीला प्रभुपाद को जिस लेडी ने इट। स्पॉन्सर किया था अमेरिका जाने के लिए, उन्होंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, क्या नाम है, जाने टिकट देने से पहले, कि मेरे को ये 10th कैंटो सुना दीजिए आप। He flatly refused. He refused to budge to that request. हाँ, उन्होंने कहा You मैं नहीं know, हूँ इसके लिए क्वालिफाइड। I am शीला not प्रभुपाद qualified. कह रहे हैं कि आई एम नॉट Who is क्वालिफाइड। writing this purport? हु इज राइटिंग ऑल दिस? क्योंकि he could not have shared that experience with somebody who is a materialist. Yeah, she was not a materialist to absolutely, क्या नाम बट है, स्टिल but still, क्या नाम है, you are not qualified to, क्या नाम है, participate. And you see, not for nothing he has said कि Bhagavad Gita is the fundamental text, and this is the postgraduate study. You know, Bhagavatam या ये जो है, ये this is a higher level study. बिल्कुल। इसको, not for nothing it has been said that it is a sacred text. भगवान खुद ही हैं ये, भगवान के नाम है, और ये जो है ना, मतलब ये इस टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन, खैर एनीवे, इट इज आवर मिस फॉर्च्यून कि हम लोग इंडिया में ही पैदा हो करके
और इन सब चीजों का हम लोगों का क्या नाम है कोई ज्ञान ही नहीं है। व्हाट कैन वी डू, यू नो। बता तो दिया उन्होंने, अभी तुम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो बता तो दिया कि स्वर्ग और क्या नाम है बड़े स्वर्ग लोक और क्या नाम है ये ब्रह्म लोक, इसमें धरती में क्या फर्क है। वहां पे तो देवता लोग दे आर हैंकरिंग कि भैया मेरे को ये स्वर्ग लोक क्या से मिल जाए। छुटकारा देके मृत्यु लोक में भेजो, ताकि क्या नाम है हम जो है यहाँ पे इजिएस्ट है टू लीव दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ जस्ट बाई क्या नाम है रीडिंग भागवतम। मतलब वो ये जो कलयुग में ना, मतलब जो कलयुग में जो इस जो इन्होंने कहा है क्या नाम है, मतलब कि ये कलयुग का बताया है। क्या है यार वो श्लोक का क्या नाम है दैट, अच्छा, हरे नाम हरे, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो जो राजदोषण, अरे हाँ हाँ, या कलेर दोषा निधे राजन, कलेर दोषा निधे राजन अस्ति है एको महान गुणा। कलि मतलब कलयुग के बहुत हजारों लाखों अवगुण हैं, लेकिन एक उसके अंदर में बड़ा गुण है। कलेर दोषा निधे राजन मेरे राजन असली अस्ति है हे एको एको महागुणा महान गुणा, गुणा कीर्तनाद कीर्तनाद एवा एव कृष्णस्य कृष्णस्य च मुक्त संगः मुक्त परम संग व्रजे। परम व्रजे। मतलब कि आप जो है भगवान की क्या नाम है कीर्ति का गान करते हुए जो हम लोग कर रहे हैं और उनका भजन करते हुए आप जो है ये अपना अटैचमेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, अटैचमेंट वी ऑल नो, अटैचमेंट ये तो जाता ही नहीं है भाई, ये कितना भी। नहीं नहीं, ये आपा वैसे एक चीज मैं एक्चुअली मटेरियल अटैचमेंट अभी देख लें, अभी जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपका मटेरियल अटैचमेंट नहीं है। हाँ हाँ जितना हाँ आप कीर्तन कर रहे हो उतना अटैचमेंट नहीं है। जितना भगवान में अपना दिमाग लगा रहे हो उतना मटेरियल अटैचमेंट नहीं है। इस तरह से मटेरियल अटैचमेंट आपका जितना कॉन्शियसनेस भगवान की तरफ लग रही है उतना मटेरियल अटैचमेंट नहीं है ये। और आप अगर देखो तो इस श्लोक में भी देखो, जैसे ही इन लेडीज ने ऊपर में थोड़ी देर के लिए उनको स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई, यूनी वो क्या डिस्कस क्या कर रही हैं, मतलब कितनी हायर लेवल की चीजें डिस्कस कर रही है। उनको स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई। और ये स्वरूप सिद्धि एक्चुअली जब आप कर रहे होते हैं ना तो इन ए वे ये आपको भी प्राप्त हो जाती है। मेरा जो वरुण का कहना है, मतलब उसका एक कंक्लूजन ये भी हो सकता है कि वो भगवान है यहाँ पे, ही इज हियर हाँ राइट है, नाउ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये हमको भी कर्म ऐसा नहीं है, क्योंकि चाहे वो गोपियां हो, चाहे हाई लेवल के ऋषि मुनि हो, चाहे हम हो, चाहे एक जो नाली का कीड़ा है वो है, आत्मा सारे के सारे भगवान के अंश है। एंड वो सर्वभूतेषु क्या नाम है, मतलब वो सबके क्या नाम है, मतलब वो समोहम सब क्या नाम है, वो सबके हृदय में समान रूप से है, ना उनकी किसी से द्वेष है और ना ही किसी को बहुत ज्यादा प्रिय है। लेकिन जो उनको भजते हैं प्रिया पूर्वक वो उनमें है और मैं उनमें और हूं। वो मैं बिल्कुल। उनमें। तो ये है मतलब ये इसको अगर आप अपने मटीरियल, वो ही इज नॉट पार्शल, बट ये क्या नाम है दैट इज वन क्या नाम है उनको प्यारे हैं, दैट इज सिंपल, है ना। बिल्कुल तो वेरी जी। नाइस श्लोकास, यस। नेक्स्ट 29 हाँ हाँ। जी। मेरा। हाँ, या वीर्या शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमाथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मेना प्रद्युम्न संबंबसुतादयो परा यश्चाहर्ता भौमा वधे सहस्राशा। Translation: The children of these ladies are Pradyumna, Sambha, Amba, etc. Ladies like Rukmini, Satyabhama, and Jamvati were forcibly taken away by him from their Swayamvar ceremonies after he defeated many powerful kings headed by Shishupal. And other ladies were also forcibly taken away by him after he killed Bhaumasura and thousands of his assistants. All of these ladies are glorious. Purport: exceptionally qualified daughters of powerful kings were allowed to make a choice of their own bridegroom in open competition, and such ceremonies were called Swayamvar, or selection of the bridegroom. Because the Swayamvar was an open competition between the rival and valiant princes, such princes were invited by the father of the princess, and usually there were regular fights between the invited princely order in a sporting spirit.
But it so happened that sometimes the belligerent princes were killed in such marriage fighting, and the victorious prince was offered the trophy princess for whom so many princes died. Rukmini, the principal queen of Lord Krishna, was the daughter of King Vidarbha, who wished that his qualified and beautiful daughter be given away to Lord Krishna. But her eldest brother wanted her to be given away to King Shishupal, who happened to be a cousin of Krishna. So there was open competition, and as usual, Lord Krishna emerged successful after harassing Shishupal and other princes by his unrivaled prowess. Rukmini had 10 sons like Pradyumna. There were other queens also taken away by Lord Krishna in a similar way. Full description of this beautiful booty of Lord Krishna will be given in the 10th canto. There were 16,100 beautiful girls who were daughters of many kings and were forcibly stolen by Bhaumasura, who kept them captive for his carnal desire. These girls prayed piteously to Lord Krishna for their deliverance, and the merciful Lord, called by their fervent prayer, released them all by fighting and killing Bhaumasura. All these captive princesses were then accepted by the Lord as his wives, although in the estimation of society they were all fallen girls. The all powerful Lord Krishna accepted the humble prayers of these girls and married them with the adoration of queens. So, altogether, Lord Krishna had 16,108 queens at Dwarka, and each of them he begot 10 children. All these children grew up, and each had as many children as the father. The aggregate of the family numbered in the millions. कुछ कुछ हद तक उन्होंने थोड़ा सा बता भी दिया है कि भाई उसी कि वो जो 16,000 जो थी 16,100 जो गर्ल्स थी देवर डॉटर्स ऑफ मेनी किंग्स जिनको फोर्सिबली भौमासुरा ने अपने पास रख लिया था फॉर हिज ओन डिजायर्स कार्नल डिजायर। तो एक्चुअली उस समय में भी सोसाइटी ने उन लड़कियों को एक तरह से फॉलन मान लिया था क्योंकि भाई वो तो एक किंग ने हथिया लिया ना उनको। तो उनकी लेकिन जो फर्वेंट प्रेयर्स की वजह से भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया है। उन 16,100 लड़कियों का उद्धार किया उन्होंने। ऐसे ही उन रुक्मिणी माता जी का उनका भी उद्धार उन्होंने एक्चुअली वो लेटर लिख के भेजेंगी जो सुदामा वो सुदामा कह रहे हैं वो जो उद्धव जी जो लेके जाएंगे लेटर टू लॉर्ड कृष्णा। एक चीज ये भी याद रखने वाली है कि लॉर्ड कृष्णा इज द अल्टीमेट जेंटलमैन। तो वो कभी नहीं अपने को इम्पोज करते। वो जब तक आप नहीं कहोगे तब तक वो अपने को नहीं इम्पोज करेंगे आपके ऊपर। वो इन लड़कियों के ऊपर भी कैसे कर सकते हैं। तो लड़कियां जब दे डिजायर दे प्रे टू द लॉर्ड कृष्णा देन ही कम्स। अब आप देखो यहाँ पे तो श्लोक में एक्चुअली ये लेडीज क्या कर रही हैं मथुरा की जो लेडीज हैं ये ग्लोरीफाई कर रही हैं इन लेडीज को जिनको कि लॉर्ड कृष्णा ने या तो फोर्सेबली टेक किया है या क्रम है जिनको कि भगवान ने मुक्ति दी है। वहां पे भौमासुरा था उसने क्रम है इन सारी यंग लड़कियों को वो कर लिया था क्रम है हरण कर लिया था उनके बाप को हरा करके। अब जो है वहां पे उस सोसाइटी उस टाइम में तो अगर क्या नाम है एक लड़की के ऊपर किसी और गैर मर्द की नजर भी पड़ जाए तो वो तो देन शी बिकेम वेरी मच फॉलन क्या नाम है उस टाइम के लिए। वो जो प्रे करती हैं उनको क्या नाम है भगवान को कि भाई अब हमारा तो आपके ऊपर नजर पड़ गई हम तो अब आपसे ही शादी करेंगे क्या नाम है और अब मैं आप चाहे जो मर्जी करिए हमारे को तो मतलब तो देन इन ऑर्डर टू डिलीवर ऑल ऑफ देम ही मैरिड देम ऑल। और यहाँ पर जो है मेनली जो ग्लोरिफिकेशन ये लोग कर रही हैं ये जो मथुरा की लेडीज वो इन लेडीज का कर रही हैं मतलब एक तरह से बता रही है भैया वो देवर नाइदर कैरेक्टरलेस नॉर बल्कि क्या नाम है देवर सो हाईली एलिवेटेड। पहले उन्होंने पिछले श्लोकों में क्या नाम है गोपियों का किया यहाँ पर उनकी लीगली लेड जो आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में है ना लीगली वेड वाइफ्स को ग्लोरीफाई किया है। और आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो पिछले परपोर्टों में दो तरह के प्रेम बताए हैं उन्होंने। एक तो जो लीगली वेडेड काइंड है और एक जो जिसमें कि क्या नाम है गोपियों का जो लव है मतलब जो कि विच हैज नो सैंक्शन ऑफ मैरिज एंड ऑल दैट इज मच हायर देन क्या नाम है इवन दिस काइंड ऑफ लव।
जी। तो ये हर एक मंडेन का नाम है, ये अंडरस्टैंडिंग से कभी बात समझ में आ ही नहीं सकती है। जी। अब वो कोई कहेगा यार, अब वही मटेरियल माइंड की अपनी लिमिटेशंस हैं, दैट इज व्हाई और जिया यू जी सी। एक और भी है, जिया जी ये जो इन लोगों का रिलेशन बताया गया है ये इतना पायस है, तो हम लोगों को बताने के लिए उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी की और उनकी पत्नियां बन गई। बेसिकली आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे शादी, पति और पत्नी का सिंपल मतलब है कि वो जो लड़कियां थी वो 100% लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी थी, हम्म, सिंपल। बिल्कुल लेकिन चूंकि यदि 100%। हम लोग केवल शादी, पति पत्नी यही वर्ड समझते हैं, इसलिए बस वो इस रेफरेंस पे वो बता रहे हैं। यही प्रॉब्लम बिल्कुल है। बिल्कुल, वो आकर के उन्होंने ये लीलाएं की है इसी तरह, जी। इसीलिए से हमारे जैसे मूर्खों को समझाने के लिए। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। ये है मतलब जी। कि ये हम्म। मतलब, और तभी वो बार बार कहा गया कि इसको, वो जो है ना, वो जो है थ्योरी है, भगवत गीता इस थ्योरी है, और जी। ये है भागवतम जो है, ये है प्रैक्टिस ऑफ कर्म है। मतलब कि जब वही जो कहा है ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं हम्म। विवेतित, इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि भाई आप भगवान की लीलाओं को कर्म है पढ़े, उनका गुणगान करें। और हम्म। जैसा ये मथुरा की लेडीज कर रही ना, ये डिवोटीज का गुणगान कर रही हैं, हम्म। मथुरा की लेडीज, ये हम्म। दिस इज कर्म है, वेरी हाई ऑर्डर ऑफ वर्शिपिंग द सुप्रीम हम्म। लॉर्ड। बिल्कुल। है ना, जब भी हम जी। लोग आपस में तो ये चीज बड़ा इम्पोर्टेंट है। एनीवे आई एम हम्म। सॉरी टुडे, आज मैं थोड़ा नहीं हो पाया। हम्म। तो अभी जी। आगे पढ़ना है अगर, तो एक एक जी श्लोक की और 30 वाला कर लेते हैं। है, वरुण एक हम और पढ़ना है। हाँ हाँ, पढ़ लो हम्म, चलो। क्या कह रहे हैं हम लोग मौसी? 30 पढ़ेंगे ना। हाँ आप 30। 30 पढ़ेंगे मौसी? यस, जी। पढ़ लीजिए। जी। और पापा आप पढ़ोगे? पढ़ लेता हूँ, यस। जी। एताः परम स्त्रीत्वमं पास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते, हम्म। यासाम गृहात् पुष्कर लोचन पतिर्न जात्वपैत्या हृति विधि स्पृशन। हम्म। All these women auspiciously glorified their lives despite their being without individuality and without purity. हम्म। Their husband, the lotus eyed personality of Godhead, never left them alone at home. He always pleased their hearts by making valuable presentations. हम्म। Purport: the devotees of the Lord are purified souls. As soon as the devotees surrender unto the lotus feet of the Lord sincerely, the Lord accepts them, and thus the devotees at once become free from all material contaminations. हम्म। Such devotees are above the three modes of material nature. There is no body disqualification of a devotee, just as there is no qualitative difference between the Ganges water and the filthy rainwater when they are amalgamated. हम्म। Women merchants and laborers are not very intelligent, and thus it is very difficult for them to understand the science of God or to be engaged in the devotional service of the Lord. They are हम्म। more materialistic, and less than them are the Kirtas, Hunas, Andhas, Pulindas, Pulkasas, Abhigaras, Kankas, Yavanas, Yavans, Khasas, etc. But all of them can be delivered if they are properly engaged in the devotional service of the Lord. By engagement in the service of the Lord, the designative disqualifications are removed. हम्म। And as pure souls, they become eligible to enter into the kingdom of God. हम्म। The fallen girls are under the clutches of Bhaumasura, sincerely prayed to the Lord Sri Krishna for their deliverance. हम्म। And their sincerity of purpose made them at once pure by virtue of devotion. हम्म।
The Lord therefore accepted them as his wives, and thus their lives became glorified. Such auspicious glorification was still more glorified when Lord played with them as the most devoted husband. The Lord used to live with his 16,108 wives constantly. He expanded himself into 16,108 plenary portions, and each and every one of them was the Lord himself without deviation from the original personality. Shruti mantra affirms that the Lord can expand himself into many. As husbands of so many wives, he pleased them all with presentations, even at a costly endeavor. He brought the Parijat plant from heaven and implanted it at the palace of Satyabhama, one of the principal queens. If therefore anyone desires the Lord to become one's husband, the Lord fulfills such desires in full. उन्होंने ये बता दिया भाई यहाँ पे कि all the souls are on some kind of a equal platform, बट उनकी डिफरेंट कंडीशनैलिटीज की वजह से वो अपने क्रम है, मतलब वो तरह तरह का क्रम है बॉडीली फीचर इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड लेती है। मतलब असुर भी बनते हैं, मनुष्य भी बनते हैं, देवता भी बनते हैं, और तरह तरह के ये जो है ना किन्नर और ये और वो कीड़े मकोड़े सब बनते हैं। बट ये जो है क्या नाम है, वंस वन हु सरेंडर्स टू द सुप्रीम लॉर्ड, वो जो है क्या नाम है, एक ही इसमें ऐसा जन्म आता है मनुष्य का, ये ह्यूमन फॉर्म, जिसके अंदर में कि वन हैज ए चांस टू गेट आउट। अदरवाइज आप जो है वो 84 लाख योनियों में अगर एक बार घुस गए तो फिर आपको काटने ही पड़ेंगे। दैट इज वाई जब किसी को ये मनुष्य का जन्म मिलता है ना, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि भैया इसी में निकल लो, जन्म है, क्योंकि अदरवाइज यू कैन आइदर गो अप और यू कैन गो डाउन, बट यू कैन नॉट गेट आउट। सी क्रम है, मतलब अगर आप वो जो है ना सतोगुण में रह करके बड़े नेकी का काम करते रहेंगे तो एट बेस्ट यू विल बी एलिवेटेड टू ए हायर प्लेन, पितृलोक में या स्वर्ग लोक में या ब्रह्मलोक में, मतलब वेयर you may have the age of lakhs of years, but and maybe more sense enjoyment, but you will have to eventually come to the this, ये जो है ना मृत्यु लोक, जो मृत्यु संसार वर्तमानी में आना पड़ेगा और आपको फिर से ये पूरा साइकिल रिपीट करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस टेम्पररी वर्ल्ड। तो यहाँ पर यही बताया है कि भैया क्या नाम है, ये असुर भी देखो ना, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, वो असुर के पुत्र थे, बट ही क्या सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड ही भगवान ने नरसिंह देव बन करके उनका उद्धार किया। इन 16,000 लड़कियों का उद्धार किया उन्होंने, बिकॉज दे सिंसियरली प्रेड फॉर हिम, दे सरेंडर्ड एंड सिंसियरली प्रेड फॉर हिम, एंड देन दे गेव देम द हाईएस्ट मतलब पोजीशन ऑफ हिज वाइफ्स। ये है, मतलब ये जो है ये थोड़ा सा जो कि क्योंकि तुमने जैसे पहले भी कहा ना, तुमने कहा था कि भाई हमको पता ही नहीं है, हम इसी वर्ड को रियल मान लेते हैं, तो इसीलिए यही हमारी मिसफॉर्च्यून है कि हमने क्या नाम है सरेंडर्ड होकर के इतने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हम पढ़ते नहीं है। अपने लिमिटेड लॉजिकल माइंड और जो है अपने आप को जो, तो उससे पढ़ते हैं, तो क्या नाम है उसके अंदर वो भाव आता ही नहीं है, तो फिर आप यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग सर्टेन थिंग्स। जिया जी, मुझे एक बात और अंदर से फील होती है कि जब निष्काम कर्म करेंगे तभी ये जो कंडीशन सोल की प्रॉपर्टीज हैं ये रिड्यूस होंगी। Yes. बिल्कुल भाई, ये जो निष्काम कर्म है ना, ये सेंसेस को कंट्रोल करके नहीं हो पाएगा, ये भी तुम्हें पता है। ये बड़ा चक्कर है, यू सी कि क्या है, एक तो आपका एक रूट है कि पहले आप कर्म योग में जाएं, फिर ज्ञान योग में जाएं, फिर आप भक्ति योग में जाएं।
और महाप्रभु जब आए ना तो उन्होंने कहा कि ये तो लोगों के बस का अब है नहीं। तो उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने एक रास्ता बताया कि जब भक्ति योग करोगे ना आप, क्योंकि ऐसा नहीं है, भगवान पहले ही ये सब टीचिंग दे गए थे भगवत गीता में, ये वाली टीचिंग डाल गए हैं। अभी आप पढ़ेंगे ना भगवत गीता ठीक से धीरे धीरे, इसीलिए मैंने सोचा कि चतुर्श्लोकी गीता को पहले समझाया जाए। चतुर्श्लोकी गीता में जो बड़ी बहुत जबरदस्त पूरा का पूरा कंडेंस कर दिया है उसको। तो क्या है कि तब आप भक्ति जब आप एक बार पकड़ लेंगे ना, एक बार when you become completely convinced about the supremacy of the Supreme Lord, by understanding that you start क्या नाम है उनका भजन अगर आप स्टार्ट कर दोगे, वो फिर क्या नाम है मतलब वो फिर आपको ज्ञान दे देंगे क्या नाम है कि किस तरह से तुम यहां से निकल सकते हो। तो उस ज्ञान में क्या नाम है आपको निष्काम कर्म करने की विधि भी और सब कुछ आ जाएगा कि कृष्ण भावनामृत होकर के कैसे वो कार्य किए जाएं। ये है क्या नाम है मतलब जो कि महाप्रभु का जो कंट्रीब्यूशन है कि महाप्रभु ने आ करके मतलब उन्होंने ये वाला ये उन्होंने मोस्ट फॉलन को भी निकलने का रास्ता बता दिया कि भाई तुम बस भगवान को मानो और उनका भजन करो बस, और अपने आप से तुम मतलब तुम्हें और कुछ तुम्हारा तुमको इस जन्म में रहते हुए इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी यू कैन बिकम लिबरेटेड पर्सन। आपकी क्या नाम है जो मटेरियल हैंकरिंग अपने आप से रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग द ब्लिस विच यू विल फील क्या नाम है जो 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 उसमें कहा गया ना कि क्या नाम है वो जो क्या कहते हैं वो जो देहोस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, कि मतलब जो है ना जो आप जो है कर्म है जो देही है जो कि कर्म है सोल जो कर्म है जिसने बॉडी को एक्सेप्ट किया है वो कौमारम यौनम जरा से अगर वो धीर है तो फिर जिसको कि इन सब चीजों का ज्ञान हो गया है कि सुख और दुख सब बराबर है, वो यहाँ उसका शरीर का देहांतर प्राप्ति के बाद उसको वो फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो बाई वाइल यू आर लिविंग यू विल बिकम ए लिबरेटेड पर्सन जी अगर आप भक्ति योग में डायरेक्ट चले जाएंगे तो। अदरवाइज ये वाले रास्ते तो है ही है। कर्मयोग का रास्ता तो वेदों में बताया ही है। कर्म योग का रास्ता कि भाई सकाम कर्म और अकर्म और विकर्म वगैरह सब उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है भगवत गीता में। हम लोगों ने मतलब उसको जितना भी सब तो तुम सही कह रही हो। हमारा प्रेमिस है क्या था प्रेमिस क्या था जो तुमने क्या कहा था सकाम कर्म करने की इच्छा कम हो कि जाएगी। अगर हाँ निष्काम कर्म जितना करेंगे उतना कंडीशन सोल फिर वो वाले मटेरियल प्रोपेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। और मैंने जो बताया कि भाई निष्काम कर्म इतना आसान नहीं है मतलब क्योंकि आपको वो जो है भक्ति से करके इजीएस्ट हो जाएगा, इजीएस्ट हो जाता है। ये मैंने बताने की कोशिश की है कि निष्काम कर्म तो यस दैट इज द ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली वो निष्काम कर्म नहीं है, आप अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना है आपका, लेकिन प्रेस्क्राइब ड्यूटी का फल जो है चूंकि आप यू आर नॉट द भोक्ता यू आर नॉट द एंजॉयर, दैट इज द प्योरेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी। मतलब तभी वो भगवान ये भी समझा रहे हैं कि जो लोग लेस इंटेलिजेंट उनको मत छेड़ो आप, अदरवाइज वो मतलब अगर मतलब लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। वो जो है ना दे कैन बिकम बिविल्डर्ड और वो पता लगा कि अध कचरे तरीके से हो सकता है वो अपना काम ही करना बंद कर दें। मतलब वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग दे मे टेक संन्यास और समथिंग और अपने बच्चों को और अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ करके निकल ले। अरे जी 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 आप समझिए ना मतलब क्योंकि हर आदमी परेशान तो है ही है गृहस्थ जीवन में, है ना, आदमी परेशान तो है ही है कि नहीं। तो अगर आपने इफ यू हैव अचीव सर्टेन लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन देन भगवान उनको बताते हैं कि भाई कैसे डील करो, जो कि हम आजकल कर्मयोग में पढ़ रहे हैं
वही भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उन लोगों को मत आप वो करो, है ना। आप बिल्कुल। केवल अपना एग्जाम्पल दिखाते रहो कि कैसे, बल्कि आप उनको ये भी मत रिवील करो दैट कि हम उनको तो यही लगेगा कि क्या नाम है, तुम अपना मतलब कि तुम यू आर वन ऑफ अस, हम्म। वन ऑफ अस, और आप भी वही काम कर रहे हैं और वहां बिल्कुल। पर, है ना। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, मेरे जी ख्याल में, है ना। ठीक जी। बिल्कुल। है तो हम लोग खत्म करें आज के में, तो मतलब जी मैं तो एक यार चल सकता हूँ, लेकिन है, ठीक जी है ना। जी। हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू ऑल।